session in which we will study about the doubts and your problems, right? First of all, variations. We are taking the variations of particular difference between the individuals and the difference of the individuals or progenies which are produced by sexual reproduction for their parents. Parents say progenies में जो difference आ रहा that called variations, right? Variations are two types. If the variations are remaining to the particular generation, they generally not transmit from generation to the next generation. Such kind of variations called acquired or non-genetical variations. They are not important in respect to the species of evolutions from new species. Second, genetical variations are always moving. They are transmit from one generation to the next generation. These particular types of genetical variations and accumulation of such kind of variations make them more fit and fine existable species. Such the process continuously and long-lasting process make an evolution of new species. We are taking the examples of genetical variations are here. As we know, the pea plants have a various kind of variations. Particular, we can say in a 7 different tracks. They are the genetical variations, but in a 4 different positions. 7 अलग-अलग 7 different tracks are there, but in a 4 position only. Height of plants, shape and color of seed, shape and color of pod, and position and color of flower. In a other side, the human beings have also variations, and such kind of variations are particular genetical variations. Color of hairs, black and brown. Color of skin and fair. Shape of hair, free and jointed. Shape of nose, long and small shape, and nature of the hair, straight and curly. Green mark has shown as the dominant traits here because the dominant traits always have a tendency to express selfly, and recessive traits are not expressing because of these dominant traits, right? So the all over conclusions of these variations are the sexual reproduction, the progeny which are generated, the progeny call the particular individual which are generated from the sexual reproduction, right? So sexual reproduction because of meiosis cell division in a germ cells, and during the gamete formation they have a tendency to exchange their genetical material to each other. That exchange of genetical material between the parental chromosomes make the variations, and these variations are because of this sperm, the exchange of generations, and these variations or accumulation of this such kind of variations make the evolution of new species. Is that clear? The things are clear, please? Okay. अब हम बात करते हैं next point. Chromosomes are vector of genes, and chromosomes are made up of genes. These genes having the nitrogenous basis sequence having a specific types of code. These code are a specific message from the previous generation to the next generation. As we know, the unit of genetics, that is genes. So what is genetics? The branch of science which deals in the study and inheritance of genes. We can see here the diagram of chromosomes here. The location of chromosomes is exactly nucleus. This is found in a tiny network or cluster of the chromosomes, that chromatin network. During the cell division, these chromosomes become very thread-like structures. We can see here the chromosomes have 2 arms that called chromatid. Each arms are made of, they are jointed in a center position that called centromere. Each chromatid or an arm of chromosomes made up of DNA and proteins filaments. Is that clear? Okay. Okay. So such kind of the particular conditions because of the genetical information or importance of particular in a cells, that because of chromatin network, and chromatin network is the part of chromosome. Actually हम ये कहें कि chromosomes ही basically genetical inheritance के लिए responsible है, तो उनकी लोकेशन क्या होगी? न्यूक्लियस. जनरली ये एक क्लस्टर है, एक नेटवर्क है, जैसे पतंग की डोरी उलझ जाती है ना, उसी तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं.
तो उस फॉर्म में उसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जब ये सेल डिवीजन होने वाला होता है उस कंडीशन के अंदर ये मोटे हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं, और इस क्लियर वाली स्थिति के अंदर आप ये चीज सारे के सारे देख सकते हैं। मेंडल्स की बात करें, मेंडल्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया गया, और पी प्लांट पे किया जाने वाला जितना भी एक्सपेरिमेंट था उसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन पोजीशन के अंदर दो प्योर प्लांट्स के बीच में, टू प्योर प्लांट्स, और ये प्योर प्लांट्स कौन से थे? वन डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। एक डोमिनेंट प्योर प्लांट एंड अनदर इज अ रिसेसिव प्योर प्लांट। ठीक है, इस कंडीशन में जब क्रॉस करवाया गया तो नया प्लांट जो आया वो मिला बेसिकली इम्प्योर डोमिनेंट प्लांट। डोमिनेंट तो है पर इम्प्योर है क्योंकि वो मिक्स हो चुका है। इम्प्योर डोमिनेंट प्लांट को हम कहते हैं हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए, वायलेट फ्लावर, प्योर वायलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, वायलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट। इन दोनों के प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट लिए गए पायसम सेटाइम को। एक में वायलेट फ्लावर है, एक में व्हाइट फ्लावर है। वायलेट फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स लेकर के व्हाइट फ्लावर में डाल दिए गए। ठीक है, ऐसी पोजीशन के अंदर क्या रहा? अब हमारा पूरा एक तरह से नोटिस कहाँ जाना चाहिए? उस व्हाइट फ्लावर में। व्हाइट फ्लावर को हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो वो बन जाता है फ्रूट बन जाता है। फ्रूट बनने के बाद में उसमें सीड्स आ जाएंगे, उन सीड को हम सो करेंगे, जमीन में उगाएंगे। उगाने के बाद जो सबसे पहली प्लांट्स की वैरायटी आएगी, जब सपोज कीजिए कि उस प्लांट्स के अंदर जिसमें व्हाइट फ्लावर्स थे उसके अंदर एक फ्रूट क्रिएट हुआ, फली जिसको बोलते हैं मटर की, वो फ्रूट क्रिएट आया, उसमें 10 सीड थे, 10 सीड्स थे। 10 सीड्स को हमने जमीन में बोया, हमें मालूम नहीं कि वो रिसेसिव है डोमिनेंट्स है, राइट। अब रिसेसिव है डोमिनेंट्स है, वो हमने उसको सो कर दिया जमीन में। अब वो क्या करेगा? जर्मिनेट होगा सीड का, जर्मिनेशन होने के बाद ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद देखा कि जो 10 प्लांट्स जनरेट हुए हैं वो 10 प्लांट्स पूरे के पूरे व्हाइट नहीं है, वो सारे के सारे वायलेट फ्लावर्स हैं। वायलेट फ्लावर होने का मतलब ये हुआ कि हमने व्हाइट वाला टेंडेंसी भी काम में लिए, व्हाइट फ्लावर के अंदर इंसर्ट करवाए थे पॉलन ग्रेन्स, और किसके पॉलन ग्रेन्स लिए थे हमने? वायलेट फ्लावर्स वाले। बट वायलेट फ्लावर्स वाले कैरेक्टर से नजर आए, व्हाइट फ्लावर्स वाले कैरेक्टर्स नजर नहीं आए। इस कंडीशन के अंदर F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे आए? इम्प्योर डोमिनेंट। इम्प्योर इसलिए बोल रहे हैं कि दे आर द फ्यूजन ऑफ व्हाइट एंड वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर्स, ये डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्या होने दिया? अब हमने उसको राम भरोसे छोड़ दिया। 10 फ्लावर्स को, 10 प्लांट्स का हमने निगरानी करी, हमने अब उनका एक्सचेंज ऑफ पॉलन ग्रेन्स नहीं किया। अब एक्सचेंज ऑफ पॉलन ग्रेन्स नहीं किया तो थोड़े टाइम बाद में उनके अंदर क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। अपने आप ही पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। पहले हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, अपने आप ही है, फ्लावर तो बंद है ना उसमें, अब बाहर से कोई पॉलन ग्रेन्स आया नहीं, अंदर का अंदर ही है। अब सपोज कीजिए कि उन 10 प्लांट्स के अंदर 100 फली आई, 100 पोर्ट्स, एक एक के अंदर 10-10 तो आई होगी। अब उनके अंदर जो सीड बन गए, उन सीड को हमने सो किया। अब हमारे पास देखने के लिए 100 प्लांट्स है। कितने प्लांट्स है? 100 प्लांट्स। और 100 प्लांट्स को हमने देखा कि उस 100 प्लांट्स के अंदर देखा तो हमने देखा कि उस 100 प्लांट्स में से 70 प्लांट्स कैसे थे? वायलेट फ्लावर्स वाले थे। 25 हमने काउंट कर लिया, 25 प्लांट ऐसे थे जो कैसे थे? व्हाइट फ्लावर्स वाले। यानी कि 75 जो परसेंटेज आया है वो 3 डोनेट कर रहा है, और 25 है वो डिनोट किसको कर रहा है? 3। तो यानी प्लांट्स को हम यदि फिजिकल बाहर से देखें, खेत में देखा हमने 100 प्लांट्स है, 100 प्लांट्स में कौन सा वायलेट है कौन सा व्हाइट है, हमने ये देखा, अंदर क्या है हमें मालूम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप, और फिनोटाइप हो गया 3:1, राइट। यदि हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली देखेंगे तो बेसिकली चेकर बोर्ड की हेल्प से देखेंगे तो वो आ जाएगा 25, यानी कि 100 में से 25 हैं वो प्योर वायलेट है, और 50% कैसे हैं, यानी 50 प्लांट्स कैसे हैं? वो हैं
इम्प्योर वॉयलेट, और जो 20 रिमेनिंग है वो ऑफ कोर्स क्या है, व्हाइट फ्लावर्स है। इस तरह से देखने से पता चला। व्हाइट फ्लावर्स को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पर टर्मोलॉजी जो काम में लेनी है वो ली जाएगी कैपिटल वी एंड वी, एंड व्हाइट के लिए ये रिसेसिव है, इसीलिए इसको W, आप W मेंशन कर सकते हो पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, V फॉर वायलेट कर देते हैं ना, W नहीं करेंगे। हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसी का स्मॉल लेटर यूज किया जाता है, डोमिनेंट है तो इसका स्मॉल लेटर यूज कर दिया। अब इस तरह से जो फर्स्ट इसकी जनरेशन आई वो ऐसे आई। F1 जनरेशन के अंदर क्या हुए, F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स कैसे नजर आएंगे, ऑल इम्प्योर डोमिनेंट, और इम्प्योर डोमिनेंट का मतलब हो गया हाइब्रिड वायलेट, हाइब्रिड वायलेट, सारे के सारे प्लांट्स ऐसे। अब इनमें क्या होने दिया, इनके अंदर होने दिया सेल्फ। पहले हमने क्या करवाया था, क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस करवाया था, अब हमने इसको सेल्फ होने दिया। सेल्फ के अंदर कंडीशन मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की होगी, तो ऐसे मिलने से यहाँ पर जो प्लांट्स का वैरायटी मिलती है उसको हम इस तरह से क्रॉस करवाते हैं। एक प्लांट को हम मानेंगे, एक तरफ मानेंगे मेल गैमेट और दूसरी तरफ मानेंगे फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट बनते टाइम उनके जो कंपोनेंट्स हो सेपरेट हो जाते हैं, भले वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। अब इस तरह से जो फॉर्मेशन आती है कैपिटल वी वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी। इस तरह से देखा जाए डोमिनेंट के अकॉर्डिंग, तो ये डोमिनेंट है, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज डोमिनेंट। सो 75% वॉयलेट, वॉयलेट 75% violet and 25% white flower. This is phenotype, और phenotype हम देख सकते हैं, we can see here phenotype 3:1 in a simple form. But in a condition of the genes, if you are taking the reference of genes here, so 25% will be pure violet, जिसको हम कहते हैं homozygous। 50% वन डोमिनेंट वन रिसेसिव मीन्स इम्प्योर हो गया, हाइब्रिड बोल सकते हो, इम्प्योर हाइब्रिड वायलेट, एंड 25% प्योर वाइट। तो इस कंडीशन के अंदर ये हो गया आपका जीनोटाइप, दैट कंडीशन विल बी जीनोटाइप 1:2:1। ठीक है, तो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, monohybrid cross in which we can study the inheritance of one gene, and this one gene example is color of flower। ये कलर ऑफ फ्लावर हमने लिया था स्टार्टिंग के अंदर, रेफरेंस लिया था जब हमने हाइट ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर हियर कि कौन सा करेक्टर ले रहे हो। यदि आपने वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या वन ट्रेट्स लिया तो वो हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड टू लेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस।